ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان ہماری زندگیوں میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں کے تحت کرتے ہیں۔ آپ کے خیال سے آپ کی زندگی میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ شاید کوئی کہے کیا میرے پاس ایک دہائی یا زیادہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے؟ شاید کوئی دوسرا یوں کہے کیا میرے لیے زندہ رہنے کو صرف 5 سال باقی نہیں ہے، یا کیا میری زندگی کے قریباً 20 سال باقی نہیں ہیں؟ لوگ شاید یوں تعجب کریں۔ اگر ہم جانتے کہ ہماری زندگیوں میں کتنے دن باقی ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم جانتے کہ ہمارے پاس زندہ رہنے کو صرف 1 سال رہ گیا ہے تو ہم آج اس لمحے پر کیا کریں گے؟ زبور نویس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں بقیہ دنوں کے شمار کے لیے دانائی کی ایک درخواست موجود ہے، یعنی وہ دن جو ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے باقی ہیں۔ ہم زبور کی کتاب باب 90 آیت 11 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو؟ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اس آیت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اپنی روزمرہ زندگیاں بغیر اپنے دن گنے گزار رہی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو 70 یا 80 سال کے ہو کر بھی صرف اس زمین پر کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو صرف 20 یا 30 سال کے ہیں، پر وہ آسمان اور ابدی جہان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں آپ کو ایک شخص کا قصہ سناتا ہوں جو کبھی قید میں تھا۔ جب اس کے بیوی بچے اسے ملنے آئے تو انہوں نے کہا، ہمارے پاس زندہ رہنے کو کئی دن ہیں، پر تو کیوں بے وجہ مرتا ہے؟ تو اپنا ایمان چھوڑ کر بادشاہ کی اطاعت قبول کیوں نہیں کر لیتا اور اس سے کہہ کہ تیری جان بخش دے؟ اس کے خاندان نے اسے ایسا کرنے کی نصیحت کی۔ اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھتے ہوئے جو اس کی یوں منت کر رہے تھے، اس نے ایک سوال پوچھا، تمہارے خیال سے اس دنیا میں میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں؟ اس نے اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ میرے خیال سے تم اگلے 20 برس یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہو۔ اس نے جواب دیا، اس زمین پر محض 20 برس زندہ رہنے کے لیے میں بلا ہمیشہ کی زندگی کیوں چھوڑوں اور آخر میں ابدی عذاب اٹھاؤں؟ آپ سب ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس زندہ رہنے کو کتنے دن باقی ہیں۔ تو پھر ہم اس بارے میں دانائی پا سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس زمین پر ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسا کر کے ہم دانائی سے تیاری کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی زندگی کو نظر انداز کیا اور بے وقوفی کی زندگی گزاری، جس کی وجہ سے انہوں نے خدا کو، آسمان کی بادشاہی کو اور محض 20 برس پانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو گنوا دیا۔ میں اور کتنے برس زندہ رہوں گا؟ جب بیوی نے کہا، بادشاہ کے سامنے اپنی مرضی اور ایمان چھوڑ دے اور اسے بتاؤ کہ تم غلط ہو، تو اس نے جواب دیا، 20 برس بہت کم عرصہ ہے، اس زمین پر کے مزید وقت کے لیے میں کیسے ابدیت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ وہ ایمان تھا جو ابتدائی کلیسا کے تمام اراکین کا تھا۔ چونکہ انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا تھا، اس لیے ابتدائی کلیسا کے اراکین کو نہایت ستایا گیا، مگر انہوں نے رہا ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس زمین پر میں مزید کتنے برس زندہ رہوں گا؟ میں اپنی زندگی کس کے لیے گزار رہا ہوں؟ ہمیں اپنے عرصہ حیات میں کم از کم ایک بار یوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مزامیر کی کتاب کے باب 90 آیت 12 میں یوں مرقوم ہے کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ فرض کریں کہ آپ کی زندگی کے صرف 20 سال باقی رہ گئے ہیں۔ ان 20 سالوں کو لطف اٹھانے کے لیے آپ اپنا ایمان چھوڑ دیں، خدا کے نبی نہ رہیں، اور خوشخبری کا خاص کام جو خدا نے آپ کو سپرد کیا تھا چھوڑ دیں۔
उस अरसे के बाद किस किस्म की जिंदगी आपकी मुंतजर होगी। इसीलिए ज़बूर नवीस ने हमें अपने दिन गिनने की तालीम दी ताकि हम दाना दिल हासिल करें। आप सब ये बहुत अहम तालीम है, क्या नहीं है? हत्ता कि अगर मैं किसी और की कहानी ना भी सुनाता तो भी हमें सोचना चाहिए इस ज़मीन पर रहने के लिए हमारे कितने दिन बाकी रह गए हैं। आज इस लम्हे पर हमें अपनी जिंदगियों के लिए किस किस्म का इंतखाब करना चाहिए। दम भर की जिंदगी के लिए क्या हम हमेशा की जिंदगी को छोड़ सकते हैं जिसे खुदा ने तैयार किया, जिसका वादा किया और जमानत दी थी। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि इस वक्त से आइंदा को अपने दिन गिने और दाना दिल हासिल करें ताकि आप पूरे एतमादी से अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। हम दूसरे कुरिन्थियों बाब 4 आयत 16 से देखते हैं। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातिनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। जब हम इस जमीन पर अपने बकिया दिन गिने और लगता हो कि आप 100 बरस जिंदा रहेंगे, तो भी 100 बरस लंबा अरसा नहीं है। यहां तक कि यह भी बहुत कलील अरसा है। तो फिर हम कैसे इस चंद रोजा जिंदगी के लिए हमेशा की जिंदगी को छोड़ दें? हमेशा की जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। इसीलिए दूसरे कुरिन्थियों के चौथे बाब में भी कहा गया है कि हम देखी हुई चीजों पर नजर नहीं करते जो इस जहान में चंद रोजा हैं और वो जल्द गायब हो जाएंगी। इसके बरक्स हम अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं। जो देखा है वो चंद रोजा है, जबकि अनदेखा अब्दी है। यूं खुदा मुसलसल हमें याद दिलाते हैं कि उसकी तलाश करें जो अब्दी है, और हमें कहते हैं कि इस जमीन पर अपने ईमान की जिंदगी गुजारते हुए हम अपनी जिंदगी के दिनों को गिने कि कितने बाकी हैं। अपनी सारी जिंदगी काम करने के बाद बाज लोग रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुके हैं, दीगर अब तक काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने की ताकत और वक्त है। ताहम ये भी उसी तफ्तीशनाक सूरत हाल से दो चार हैं। अगरचे आप इसी सूरत हाल में मजीद 20 बरस गुजार दें, तो उन 20 बरसों में आपके लिए ऐसी जिंदगी क्या मानी रखती है जिसमें आप खुदा का इनकार कर दें और रास्त जिंदगी गुजारने से मुनकर हो जाएं? तो फिर एक रास्त जिंदगी समझी जाने वाली जिंदगी क्या होती है? हमारी जिंदगियों का मकसद क्या होना चाहिए? कई अकसाम की नौकरियां होती हैं जो हम अपने अरसा हयात में चुन सकते हैं। इस दुनिया में कई अनवा के शोबे हैं, जैसे कि सदूर, वज़राए आज़म, सियासतदान, ताजिर, मजहबी रहनुमा, कानूनी पेशेवरान, वकला, मुअल्लिम और इसके अलावा और बहुत से। ये वो पेशे हैं जो इस ज़मीन पर रहते हुए ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए इजाद किए गए हैं। इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए हम अपने पेशे के लिए खुद को बहुत ज़्यादा वक्फ कर देते हैं, लेकिन आखिरकार क्या ये सब इख्तिताम पजीर नहीं होता? हर काम के वक्त की एक हद मुकर्रर है। ऐसा कोई नहीं जो अपनी तमाम जिंदगी काम कर सकता है। जब लोग रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचते हैं तो उनके पास रिटायर होने के अलावा कोई चारा नहीं होता। ताहम जब हम खुदा के कलाम को देखें तो हमें सोचना और अपने आप से पूछना चाहिए कि हमेशा की जिंदगी की तैयारी में हम वाकई इस लम्हे क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगियों में कितने दिन बाकी हैं? हमें इस किस्म की ज़हनियत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिर हम समझ सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि क्यों खुदा हमें सिखाते हैं कि इस ज़मीन पर आर्जी लम्हात में मसरूफ ना रहो, बल्कि वो लोग बनो जो अब्दी चीज की तैयारी करते हैं। क्या हम नहीं कर सकते? दूसरे कुरिन्थियों बाब 3 आयत 6 से खोलते हुए हम जारी रखते हैं। जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया।
इस आयत में जिसने खुदा को जाहिर करता है, इसका मतलब है कि खुदा ने हमें नए अहद के खादिम होने के लायक किया है। यूं कहा गया कि लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। हमेशा खुदा हमें नए अहद के खादिम बनने को कहते हैं। आज मेरे दोहराने के वक्फे के दौरान गुफ्तगू के कई मौजूआत थे। जब मैंने अपने एक जान पहचान वाले के बारे में पूछा तो मुझे खबर मिली कि वो तो मर चुका है। जब मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि वो शख्स भी मर चुका है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे कई जान पहचान वाले मर चुके हैं। मेरे वालिदैन की नस्ल गालिबन सब मर चुके हैं। इस नस्ल के गुजर जाने के बाद जब मैंने अपने बकिया दिन गिने तो मैंने यूं खुद कलामी की कि अब अगला मैं हूंगा। जब मैंने उन मर जाने वालों को याद किया तो मैंने याद करके कहा, यह शख्स दाना था, वो शख्स बहुत ज़हीन था, वो सब लोग काबिल तारीफ थे। ताहम अब वो कहाँ हैं? उनके जिस्म मिट्टी में लौट चुके हैं। ताहम वो जो सच्चाई में थे उन सबको हमारे आसमानी बाप ने गले लगाया है। इस जिस्मानी जिंदगी के ताल्लुक से हत्ता कि दुनिया के लोग भी इस बात का इजहार करते हैं कि होशियार होना, उम्मीद रखना या ताकतवर होना ये सब आरसी और बेमाने बातें हैं। क्या नहीं है? ये सब बुतलान है। ताहम इस जमीन पर ईमान की जिंदगी गुजारने वाले सब पीछे खूबसूरत और अच्छे फल छोड़ जाते हैं। हर चीज भुला दी जाती और बेवकूफ हो जाती है, मगर जो फल वो अपनी जिंदगी के दौरान खुदा की बाहों में लाए हैं वो सच्चाई में बाकी रहते हैं। जब मैंने उनके फलों को देखा तो मैंने ये सोचा कि क्यों खुदा हमें खुशखबरी की मुनादी करने को कहते हैं। मुझे एक बार फिर वजह याद आई। जब हम दूसरा कुरिन्थियों बाब 3 देखें तो ये कहा गया है कि जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। इस जमीन पर कई पेशे हैं और ज्यादातर लोग इस दम भर की जिंदगी के लिए अपने आप को सिर्फ अपने रोजगार के लिए वक्फ कर लेते हैं। ताहम वो क्यों अब्दियत के लिए मेहनत करने के मौके को थामे नहीं रख सकते? हम मरकस बाब 16 खोलकर खुदा का कलाम जारी रखते हैं। जब आप मरकस बाब 16 आयत 15 देखें तो ये कहा गया है कि और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल के सामने इंजील की मुनादी करो। सारी खल के सामने इंजील की मुनादी करो यानी दुनिया के सब लोगों को खुशखबरी की मुनादी करनी है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जब खुदा ने हमें जमीन कहलाई जाने वाली जगह पर भेजा तो उन्होंने हमें काम की जगह पर भेजा था जहां हम इस किस्म का काम करते हैं। चूंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में यानी काम की जगह पर भेजा था जहां हम सब लोगों को खुशखबरी की मुनादी करते हैं, तो खास काम के मुकम्मल हो जाने तक हम आराम नहीं कर सकते। क्या ये नहीं लिखा कि जब हम अब्दी आसमान की बादशाही को जाएंगे तो हम अब्दुल्लाबाद आराम करेंगे? इसलिए खुदा कहते हैं तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। खा हम स्कूल में मुअल्लिम हों या काम की जगह पर कारकुन, हमें हरगिज किसी भी वक्त खुदा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मुनादी से खुदा की मर्जी को पहुंचाना जारी रखना चाहिए। हत्ता कि इस जमीन पर जब अमीर भी मरते हैं तो उनके लिए भी हर चीज बेवकूफ हो जाती है। इससे भी बुरी बात यह होती है कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जहां मरने वाले की छोड़ी की विरासत खानदान के लालच की वजह से उनके खानदानी ताल्लुकात तोड़वाने का सबब बन सकती है। ताहम खुदा ने हमें दुनिया में जाने और सारी खल्क को खुशखबरी की मुनादी का खास काम सौंपा है। हमें इस खास काम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमें अब्दियत को ले जाता है। क्या करना चाहिए? हमारी जिंदगियों में कितने दिन बाकी रह गए हैं वक्त का मसला नहीं है। हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि कैसे हमें अपनी जिंदगी के बाकी दिनों को गुजारना है। मुझे यकीन है कि ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए दानाई अहम है।
दूसरे तिमुथियुस बाब 4 आयत 1 से देखते हैं। खुदा और मसीह यसू को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। जब आप आयत 6 पढ़ें तो एक मंजर है जहां पौलुस रसूल ने भी अपनी जिंदगी के बाकी दिनों को गिना, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। इस आयत में कूच का वक्त आ पहुंचा है से मुराद है कि इस जमीन को छोड़ने का वक्त नजदीक है। उसने उस वक्त अपनी जिंदगी के दिन गिने। आयत 7 से जारी रखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। जब पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिने तो वो जानता था कि जमीन पर उसका वक्त खत्म हो रहा है। अगर वो कैद से निकाला जाता और ले जाया जाता तो जल्द उसे मार डाला जाता। अपनी जिंदगी के तमाम तजुर्बात का जायजा लेते हुए उसने अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिने। बेशक पौलुस रसूल रिहा हो सकता था अगर वो यसु पर ईमान रखने का इनकार कर देता। ताहम तमाम मुकद्दसीन अपने ईमान का इनकार करके मौत से छुटकारा पाने के लिए रजामंद ना थे। कौन सा एहसास उनके ऐसे पुख्ता ईमान का बाइस बना था? इस जमीन पर हमारी जिंदगी के वक्त की मियाद में और उस दुनिया में जहां खुदा ने हमारे जाने के लिए तैयारी की और जिसका वादा किया है, हमारी जिंदगी के वक्त की मियाद में एक बड़ा नाकाबिल मुवाजना फर्क मौजूद है। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। आप सब, अगर आपके पास आपकी जिंदगी में एक हफ्ता, एक महीना या एक साल रह जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी जिंदगी में बाकी बचे वक्त को गुजारने का सबसे दानिशमंदाना तरीका क्या होगा? इस जमीन की चीजें अब तक नहीं रह सकती। ऐसा कुछ नहीं जो आप हमेशा कर सकते हैं और ना ही आप हमेशा इस जमीन पर रह सकते हैं। इससे कितना नजर कि आप इस जमीन पर कितने तजुर्बाकार और बाइख्तियार हैं। जब आपका वक्त आएगा तो आप इस जमीन को छोड़ जाएंगे। क्या जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती? इसीलिए ज़बूर बाब 90 में यह कहा गया है कि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। यही अच्छा होगा अगर हम अपनी जिंदगियां खुदा को खुश करते हुए गुजारें। ताहम बदकिस्मती से जब हम सब इंसानों की जिंदगियों पर गौर करें तो उनमें से ज्यादातर की जिंदगियां ऐसी जिंदगी में डूबी हुई हैं जो खुदा के कहर को भड़काती हैं। आए इस अमर की तस्दीक ज़बूर की किताब बाब 90 आयत 9 खोलकर करते हैं। ज़बूर बाब 90 आयत 9 में ये लिखा है कि क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। ये कितना अच्छा होगा अगर हमारे तमाम दिन खुदा की खुशी और मुसरत के तहत गुजरें। ताहम किताब मुक़द्दस कहती है हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है। यहाँ तक कि 70 से 80 बरस बहुत जल्द गुजर जाते हैं क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। वक्त तेजी से गुजर जाता है। किताब मुक़द्दस कहती है खुदा के कहर में हमारे तमाम दिन जाते रहते हैं। इसका मतलब है कि लोग खुदा की मर्जी अंजाम देने के लिए खुदा को खुश करने में अपने दिन नहीं गुजारते।
اس کے برعکس وہ اپنا سارا جوش زمینی چیزوں میں لگا کر اور چند روزہ چیزوں کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر کے اپنے دن اس گناہ گار جہان میں دنیاوی چیزوں کا پیچھا کرنے میں گزارتے ہیں۔ اس لیے ہمیں انہیں جگانا چاہیے۔ منادی کرنا دنیا کے لوگوں پر اس حقیقت کو اجاگر کرنا ہے کہ صرف یہ چند روزہ جسمانی جہان نہیں جو جلد غائب ہو جائے گا، بلکہ ابدی جہان یعنی آسمان کی بادشاہی بھی ہے۔ اسی لیے خدا ہمیں وقت بے وقت منادی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم اس زمین کو کام کی جگہ خیال کریں جہاں ہم کام کرنے آئے ہیں۔ یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں کام کی جگہ ہے، نہ کہ آرام کی جگہ۔ تو پھر ہم آرام کہاں کر سکتے ہیں؟ آسمان ہمارے آرام کی جگہ ہے۔ آسمان ہمارے آرام کی جگہ ہے اور زمین ہمارے کام کی جگہ ہے۔ جب ہم مستعدی سے اپنے کام کی جگہ یعنی زمین پر کام کرتے ہیں تو ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ ہم مسیحیوں کو پہلے وقت کے مختلف تفکرات میں امتیاز کرنا چاہیے، یعنی آسمانی وقت اور زمینی وقت میں۔ ہمیں ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ اس زمین کے برس محض پل بھر کے ہیں۔ وہ لمحہ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں دانائی جاتی رہتی ہے۔ وہ لمحہ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں ایمان جاتا رہتا ہے۔ وہ لمحہ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں اس جہان میں شیطان سے بہکائے جاتے ہیں اور ایمان کا مسکن اسی لمحے گر جاتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے اکثر اراکین نے اپنی زندگی اس قسم کی ذہنیت سے گزاری تھی۔ اس زمانے میں ہمیں بھی ہر روز اس قسم کے ایمان کے ساتھ اپنی روحانی آنکھیں آسمان کی بادشاہی کو دیکھنے کے لیے کھولنی چاہیے، ورنہ ہم خدا کے خلاف بڑبڑانے لگتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس زمین پر کی زندگی میں مصیبتیں ہوتی ہیں۔ آپ سب اس زمین پر کی جسمانی زندگی کے لیے ہمیں خدا پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ہماری منزل مقصود آسمان کی بادشاہی نہیں ہے؟ یاد رکھتے ہوئے کہ ہم آسمان میں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے ساتھ ابدی زندگی اور شادمانی کا لطف عبدالآباد اٹھائیں گے، ہم اس دنیا کی خواہش نہ کریں یا اس زمین پر کسی چیز کا لالچ نہ کریں یا اس جہان کی آزمائشوں میں نہ پڑیں جو ہمارے ایمان کی زندگی کو ہلاکت کی راہ پر لے جائے گی۔ یہ واقعی خطرناک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اپنی جسمانی زندگی کے لیے کام ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کام پر محنت اور وفاداری سے کام کرنا چاہیے۔ تاہم ہمیں اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو بھول کر اپنے کام ہی میں نہیں پڑے رہنا چاہیے۔ ایک بار پھر اس پر غور کرتے ہوئے آئیے ہم وہ لوگ بنیں جو نئے عہد کے خادموں کے طور پر جن سے خدا خوش ہوں اس پوری دنیا کو بچانے کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ جب ہر چیز جاتی رہتی ہے تب ہم جانیں گے کہ ہم نے اپنا وقت اس زمین پر سب سے بامانی کام کرنے میں گزارا تھا۔ وہ دن جلد آنے والا ہے۔ ہم عبرانیوں باب 11 آیت 33 سے پڑھتے ہیں، انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا۔ عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ یہ دیکھ کر کہ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے ایمان کی کیسی زندگی گزاری، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تمام قسم کے دکھ برداشت کرنے کے لیے ان کا کیسا پختہ ایمان تھا۔ اس زمین پر کا وقت پل بھر کا ہے، یہ محض ایک لمحے کا ہوتا ہے۔ اس زمین پر اگلے 20 برسوں کے بدلے میں کیسے اپنی روح دے سکتا ہوں؟ صاف صاف کہیں
तो हम कैसे आसमान की बादशाही की जिंदगी को छोड़ सकते हैं? कौन ऐसा निकम्मा काम कर सकता है? चाहे शहंशाह की मानन कोई बड़ा बाइख्तियार शख्स भी हमें खुदा पर ईमान रखने से रोकने की कोशिश करे, क्या हम कभी कह सकते हैं मैं आइंदा खुदा पर ईमान नहीं रखूंगा? हम ऐसा नहीं कह सकते। क्या हम कह सकते हैं अगरचे उन्हें इंतहाई हद तक सताया गया था पर उन्होंने रिहा होने से इनकार कर दिया था, अगरचे उनका ठट्ठा उड़ाया गया, कोड़े लगाए गए, जंजीरों में बांधा गया और कैद में डाले गए, पर उन्होंने इन दुखों को बेवकूफ गर्दाना था। आप सब इस जमाने में भी बतौर मिसाल के तमाम मुकद्दसीन का ईमान हमारे दिलों पर कंधा होना चाहिए। इसे अपने दिलों पर कंधा करने के लिए हमें खुद से ये पूछते हुए अपने दिन गिनने चाहिए कि हमारी जिंदगियों के कितने दिन बाकी रह गए हैं। बास के शायद 10 बरस बाकी हों, बास के शायद 20 बरस बाकी हों और शायद बास के 30 बरस बाकी रह गए हों। ताहम हम सयून के फर्जंदों को हरगिज खुदा को छोड़ना, अपने ईमान को तर्क नहीं करना चाहिए और मजीद 20 या 30 साल जिंदा रहने के लिए आसमान की बादशाही को तर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा निकम्मा काम हमारे साथ नहीं होना चाहिए। सही सच्चाई को कबूल करने से पहले जब हम दुनिया में थे तो हमें कोई अंदाजा नहीं था कि कैसे अपनी जिंदगियां गुजारें। ताहम अब क्या आप हर रोज खुदा के कलाम को सुनते और सीखते नहीं हैं कि बशमूल इस दुनिया में और आसमान की बादशाही में कैसे रहना है? हम रूहानी जहान के लिए जिंदगी गुजारने वाले लोग बने। अगर हम इस तरह जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं तो किताब मुक़द्दस कहती है कि हमें अपने सलीब उठाने चाहिए और दुखों से भरी जिंदगी हमारे साथ होगी। ताहम ये भी लिखा है कि इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। रोमियो बाब 8 खोलते हैं, बाब 8 आयत 16। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। इसीलिए अगरचे इब्तिदाई कलीसिया के अरकान को बदतरीन सजा दी गई पर उन्होंने रिहाई मंजूर ना की थी। अगरचे उनका ठट्ठा उड़ाया गया, कोड़े मारे गए और कैद में डाले गए, हर किस्म की आजमाइश का सामना किया, पर उन्होंने कहा जल्द हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। फर्ज करें हमने खुदा का इनकार किया, अपना ईमान छोड़ा और इस जमीन पर जिंदगी के 10 बरस और गुजारे, तो ऐसी जिंदगी हमें क्या खुशी देगी? क्या ये हमारे लिए खुशी का बायस होगी? चूंकि उनका ऐसा गैर मुतजलजल ईमान था, इसलिए ये लिखा है कि दुनिया उनके ईमान के लायक ना थी। कुलुसियों बाब 1 खोलते हैं, बाब 1 आयत 22। जो पहले खारिज और बुरे काम के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते के तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पौलुस उसी का खादिम बना। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ। पौलुस रसूल ने रजामंदी से हकीकत कबूल की थी कि उसे हर रोज मुकद्दसीन और कलीसिया की खातिर दुख उठाने पड़ते थे। आयत 25 से जारी रखते हैं, जिसका मैं खुदा के उस इंतजाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे स्पुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूं। पौलुस रसूल ने कहा मैं मसीह की मुसीबतों को उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में भर लेता हूं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, उसके बाद किस किस्म के नतीजे की उसे तवक्को की गई थी। ये कितनी खुशी की बात है कि खुदा ने मेरे लिए रास्तबाजी का अब्दी ताज तैयार किया है। जब यहाँ मेरे दुखों की जिंदगी खत्म होने के बाद मैं जल्द आसमान की बादशाही में वापस जाता हूँ। आप सब इस जमीन पर रहते हुए अपने ईमान को कायम रखकर हम कितने मुबारक होंगे। बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान का सौदा इस जमीन की जिस्मानी जिंदगी के लिए कर लिया है। वो कितने काबिल तरस हैं। हमें इस दम भर की जिंदगी के लिए किसी भी तरह अब्दियत को नहीं छोड़ना चाहिए। सही,
ہم دوسرا تموتھیوس باب 2 آیت 1 کھولتے ہیں۔ پس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمی کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ اس آیت میں درج خدا کے کلام کے مطابق یہ ناگزیر ہے کہ جو لوگ مسیح سے اچھے سپاہیوں کے طور پر چنے گئے ہیں وہ ایمان کی زندگی گزارتے ہوئے ضرور مصیبتوں سے گزریں۔ ہم کیسے وہ ایمان رکھیں جو خوشخبری کی خاطر سزا کو گلے لگائے، نہ کہ وہ ایمان جو رہا ہونے کی کوشش کرے۔ ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے ہماری زندگیوں کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر ہم یہ سوال یاد رکھیں اور جب بھی ہمیں دشواریوں کا سامنا ہو تو اس کے بارے میں سوچیں، تب ہمارے پاس اپنے ایمان کا جائزہ لینے کا موقع ہوگا جو شاید کمزور ہو گیا ہو، اور اپنے ایمان کو مستحکم بنائیں۔ ابدی آسمان کی بادشاہی نزدیک آ رہی ہے۔ اگر ہم مسیح کے اچھے سپاہی ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، تب یہ دنیا مزید تفریح کی جگہ نہیں رہتی بلکہ کام کرنے والوں کے لیے کام کرنے کی جگہ ہے۔ اگر لوگ اس کام کی جگہ پر آئیں اور کام کرنے کی بجائے آرام کریں اور سست ہو جائیں، تب وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی باقی زندگیاں خدا کے قہر میں گزارتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ نیا سال مبارک سال ہوگا جب ہم دانائی کے ساتھ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہوئے کہ ہماری زندگیوں کے کتنے دن باقی ہیں۔ باپ آنسانگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کے جلال کے لیے سامریہ اور زمین کی انتہا تک منادی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ خدا کو تمام جلال دیتے ہوئے میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔